خاص آج خدا نے مجھے یہ میسج دیا آپ کے لیے کہ خداوند غریبوں پر توجہ دیتا ہے، خداوند سدا غریب کو سنبھال لیتا ہے، غریب کی دعا سنتا ہے، غریبوں پر مہربانی کرتا ہے، اور غریب مبارک ہیں، دل کے غریب مبارک ہیں، غریب ہمیشہ پائے جائیں گے۔ اور غریبی کیسے آتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہماری خاطر غریب بن گیا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، شاہ عظیم اس دھرتی پر آپ کو جیتنے کے لیے، آپ کے دل جیتنے کے لیے، آپ کی روح کو جیتنے کے لیے خود سب کچھ آپ کو وہ لٹا کے وہ غریب بن گیا۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے، پہلا ساموئیل 2 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں، زبور 40 اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، خدا مسکین کر دیتا ہے، دولت مند بنا دیتا ہے، وہی پست کرتا سرفراز بھی کرتا ہے، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھا لیتا ہے، کنگال کو گورے میں سے نکال کر کھڑا کر دیتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے۔ خدا آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ نبوکدنیزر جب اس نے خدا کی بارگاہ میں گھمنڈ کیا کہ یہ کتنا بڑا محل جو میں نے اپنی حکمت سے بنایا تھا، خدا نے اسے پہلے وارننگ دی تھی کہ جیسے ہی تو نے یہ بولا تیری بادشاہت تجھ سے لے لی جائے گی، تو آدمیوں سے ہانک دیا جائے گا اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا۔ پہلے وارننگ دی تھی۔ خدا گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا، غرور کو پسند نہیں کرتا، خدا حلیموں کو پسند کرتا ہے، خدا فروتنوں کو پسند کرتا ہے، خدا انکساروں کو پسند کرتا ہے، جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں ان کو اپنے دل سے لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں جو میرے دل کے مطابق ہے، وہ آپ کو ایسے ہی چاہتا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی میں کوئی گھمنڈ، کوئی غرور، ہمارا سب سے بڑا فخر، ہمارا سب سے بڑا جلالی قدوس رب الفاظ ہے، جس کے دربار میں، جس کی ہیکل میں، جس کی پناہ گاہ میں، جس کے چرن میں ہم قوت لے لیں، جس کے چرن میں ہم اس کا کلام لے لیں، جس کے چرن میں ہم اس کی باتیں سیکھ لیں اور اس کا دیدار کرنے آئے ہیں، وہ آج آپ کو اپنی برکتوں سے لبالب بھرے گا۔ مت سوچیں، آپ سب خدا میں امیر باپ کے بیٹے ہیں، آپ سب کو اس نے شاہی کہنوں کا فرقہ اور برگزیدہ قوم کہا ہے، آپ سب امتوں میں سے اس نے آپ کو چن لیا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا اور انہیں توفیق دیتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں رہیں۔ ہاللیلویہ۔ بہت سارے لوگ ہیں کچھ ہونا ہی نہیں، رہ نہیں گیا، اور جب خدا سب سے بڑی دولت ہماری کون ہے؟ سب سے بڑی دولت ہمارا خداوند خدا ہے۔ جب ہم نے یسوع کو پا لیا، ہم یسوع کو حاصل کر لیا، ہم نے دنیا کی ساری چیز کو حاصل کر لیا۔ انمول تحفہ ہمارے پاس صرف خداوند یسوع ناصری، جس نے آپ کو، ہم سب کو اپنے لیے چن لیا اور آپ کو سرفرازی دی، آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی، آپ کی زندگی میں حیرت انگیز کام کرتا ہے، آپ کے مانگنے سے پہلے وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کو ہر چیز مہیا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، لوکا پہلا باب اس کی 48 آیت میں، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی اور دیکھا اب سے لے کر دنیا کے تمام زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، اس کا نام مبارک ہے۔ خدا کی بندی مریم جب مسیح خداوند کو اس کی کوکھ میں ڈالا گیا، اس نے کہا، اس وقت اسرائیل پر بڑی سختی تھی، رومی حکومت ان پر قابض تھی، اس نے کہا اس نے ہماری پست حالی کو دیکھ لیا، اس نے ہم پر ترس کھایا، اس نے اپنے بیٹے پیارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں ہمارے لیے، سب کے لیے مخلصی دینے کے لیے بھیج دیا۔ اور اس نے کہا مریم نے کہ آج سے زمانے کے تمام لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ مبارک مریم، مقدسہ مریم، جو مسیح خداوند کی ماما کلائی اور آپ سب کی محسن بزرگہ، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی عورت کلائی۔ اس نے کہا، خدا کی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ غریبوں کی دعا خدا سنتا ہے۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعا سنے؟ کتنوں کا ایمان ہے کہ خدا ہماری دعا سنتا ہے؟ آپ نے ابھی بڑی گواہیاں سنی، اس کا کلام کہتا ہے، متی
21 बाप उसकी 22 आयत में, जो दुआ भी तू ईमान के साथ मांगेगा वो तुझे मिलेगा, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खुदा आपकी दुआओं को सुनता, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता, खुदा आपके साथ होता। ज़बूर 34 में वो क्या कहता है, हम देखेंगे कि खुदा किस तरह अपने कलाम से हम कलाम होता है। वो कहता है, वो गरीबों की दुआ को सुनता। 6 आयत में, इस गरीब ने दुआई दी, खुदावन, हालेलुया, इस गरीब ने दुआई दी, खुदा ने उसकी सुनी और उसके सब दुखों से उसे बचा लिया। उसके सब दुखों से उसने बचा लिया। कैसे वो दुआएं सुनता है? अगली उसकी आयत 17-18 में लिखा है, सादक चलाया और खुदा ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदा शिकस्ता दिलों को नजदीक है और खस्ता जानों को बचाता है। मैं खुदा का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया, मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। फिर 34 बाप उसकी 10 आयत में लिखा है, बबर के बच्चे तो हाजतमंद भूखे हो सकते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी चीज के नेमत के मुताबिक ना होंगे। ये कलाम इसलिए मैंने बताया कि जब भी आप खुदा के आगे आते हैं सच्चे दिल से, कामल दिल से, पूरे ईमान के साथ उसके आगे घुटने टेक के जब दुआ करते हैं, यहोवा मैं पुकारता हाँ, शाफी मैं पुकारता हाँ, मुनज्जी मैं पुकारता हाँ, यीशु मैं पुकारता हाँ, मेरे वाल दुखी कर, छेती छेती आ, छेती छेती आ। उसी वक्त आपकी दुआ ऊपर जाएगी और उसी लम्हा दूसरे हाथ आपके पास आ जाएगी। खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, जवाब देगा। इससे पहले कि आप आमीन कहें, उठे, आपका चेहरा शाश्वत, आपकी रूह जान ताजगी, आपकी जिंदगी यीशु के नाम की हो गई, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बेटे उसके पास आए। कलाम ने लिखा, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल जाएगा। जो कोई भी मांगता है वो पाता है, लेकिन शर्त यही है कि सच्चे दिल के साथ, कामल ईमान के साथ, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से। दाऊद कहता है, मैंने अब जमीन की तह से अपने खुदा के आगे फरियाद की, आसमान से सुन के मुझे जवाब दिया और मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया। वो खुदा आपकी दुआओं को सुनता, वो खुदा आपके घर बार को संभालता, वो खुदा आपके बच्चों को कामल से तंदुरुस्ती देता, वो खुदा दुनिया की बेशुमार, वो जिंदा खुदा हर एक की दुआ सुनने के लिए तैयार होता है। दाऊद कहता है, खुदावन देर ना कर, जल्दी सुन, मुझे जवाब दे दे। खुदा कहता है, ले दाऊद, इसी वक्त तुझे मैं जवाब देता हूं। दाऊद कहता है साम्स 56 में 7 में, मैंने अपने हक ताला से फरियाद की, आसमान से सुन के मेरे लिए सब कुछ कर दिया। आपके लिए सब कुछ करने वाला खुदा है। वो गरीबों की दुआएं सुनता, वो गरीबों की दुआओं का जवाब देता, वो गरीब को घूरे से उठा लेता है। अय्यूब नबी कहता है, मैं जानता हूं तेरा इरादा कोई रोक नहीं सकता, तो सब कुछ करने में कादर खुदा है। वो खुदा जिसकी आप पूजा करते हैं, वो खुदा जिसकी पाक बारगाह में आप बैठे हैं, वो खुदा जो आसमान और जमीन का खुदा है, वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, अब सब का खुदा है। वो कैसे कैसे हमें जवाब देता है। मैंने अपनी तजर्बे से 40 साल में यहां पर कर रहा हूं, मैं कहता हूं खुदा ने आज तक मेरी एक भी दुआ को जमीन के नीचे नहीं पड़ने दिया। मेरी सारी दुआएं उसने सुनी। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि उसने मेरी एक एक फरियाद, एक एक इल्तिजा, एक एक दरखास्त सुनी और उसने मुझे जवाब दिया। एक छोटी सी गवाही देता हूं। मैं खुदा के घर में, पाक बारगाह में मैं दुआ कर रहा था। मैं दुआ करते करते, खुदावंद आज जिस तरह तूने पतरस को बोला दानी तरफ जाल डाल और बेशुमार मछलियां आई, और आज तेरे बंदे के साथ ऐसा ही हो। और जैसे ही 11 बजे मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, एक कॉल उधर से आ रही है, एक कॉल उधर से आ रही है, एक कॉल उधर से आ रही है, ये जॉब है इसको मिजली करना है, ये जॉब है इसको मिजली करना है। खुदा ने मिजली वो जॉब का जवाब दिया मुझे। मिजली खुदा ने सुना। खुदा ने इतना काम दिया कि 6 महीने मेरे पास काम खत्म नहीं हुआ, काम पर काम आता रहा। फिर मैं पास्टर दीनाकर के साथ था, हम दोनों दुआ कर रहे थे। पास्टर दीनाकर ने मेरे ऊपर प्रोफेसाई की, कहने लगा तेरे ऑफिस में एक बंदा है जो तेरी कंपनी की जड़ें काट रहा है, मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, देख खुदा तेरे सब कुछ काम सही करेगा। मैंने उसे कुछ नहीं बोला था।
उसने मेरे लिए दुआ की और मेरी जेब में $400 थे, मैंने उसके तकिए के नीचे रखे। मैं जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो खुदा ने उसके एवज मुझे 40,000 dirham, आदमी मेरे ऑफिस में लेके बैठा था, मुझे दिया कि ये आपके बिजनेस के लिए, आप मेरा बिजनेस आप कर दें। खुदा मिजली, जब खुदा के लिए कोई काम करता है, खुदा मिजली आपको जवाब देता है। खुदा कभी किसी का उधार नहीं छोड़ता। जो जितनों ने खुदा को कबूल किया, उसने उन्हें अपने बेटे बेटियां बनने का हक बख्श दिया। ज़बूर 41 बाब उसकी पहली आयत, मिसाल 14 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, और मत्ती 25 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, उस वक्त बादशाह अपने दान तर वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की है, उसे मरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मेरे बेटो, खुदा यीशु ये कलाम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वो कहते हैं, खुदा कब तू हमारे पास आया तो हमने उससे खाना खिलाया, कब तू हमारे पास आया हमने पानी पिलाया, कब तू ने कहा। यीशु ने किसी वक्त भी, किसी के रूप में भी खुदावंद आपके पास आ सकता है। एक बच्चे की शरीर में आपका दरवाजा खटखटाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोल, आज मैं तेरे साथ रफाकत और शराकत रखना चाहता हूँ। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, क्यों नहीं तू उसके पास आता। हालेलुया। एलिया नबी कलाम में लिखा हुआ है, सारपत की बेवा, पहला सूरा 3 उसका 14-15 बाब में लिखा हुआ है कि एलिया को खुदा ने कहा, मैं तेरी परवरिश के लिए सारपत की बेवा को तैयार किया है। बेवा के पास पहले ही कुछ नहीं था, उसका आपने कलाम में पढ़ा हुआ है, उसने सिर्फ उसके पास एक मुट्ठी भर आटा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। एलिया जब उसके पास गया, उसे कहा कि तू मुझे पानी पिला, पानी ले आ। वो बेचारी जाने लगी तो एलिया ने कहा, एक टिक्की छोटी सी रोटी की भी ले आना। वो कहती है, तेरी जान की सौगंध, मेरे घर में सिर्फ एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल की है, जिससे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि सख्त काल पड़ा था। एलिया ने दुआ की, 3.5 बरस पानी नहीं बरसा, ड्राई हो गया, सब कुछ सूख गया, और एलिया भी इसमें सफर हुआ। और एलिया ने उसे कहा, देख, जब तू खुदा का हुक्म मानेगी, जब तू खुदा की बात मानेगी, ना तेरे मटके में आटा कम होगा, ना इस तेरी कुप्पी में से तेल कम होगा। उसने एलिया के कहने के मुताबिक किया, गई, रोटी पकाई, एलिया को लाके पहले फंस दिया, और खुदा ने उसका पूरे जितनी देर वहां पर काल रहा, खुदा ने उस पर रहम किया, बेवा भी पलती रही, एलिया भी पलता रहा। हालेलुया। मेरा खुदा यीशु मसीह, जब उनके पास बड़ी भीड़ थी, यरूशलेम से बाहर, मीलों मील बाहर, वहां पर मैं जगह पर गया जहां पर मसीह खुदा ने 5,000 को रिझाया, जहां 4,000 को रिझाया। वो शहर से वरान जगह पर है, और उस पहाड़ के ऊपर उनका अल्टर भी बनाया, बाग भी लगाया हुआ है, जहां मसीह खुदा ने 5,000 को। मैं हैरान हो रहा कि चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं नजर आ रहा। मसीह खुदा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास रोटियां हैं? फिलिप बोलता है, किधर से रोटियां आएंगी, हमारे पास 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। यीशु सब कुछ जानता था, उसने सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि वो हर चीज को होने वाली से पहले भी जानता है, जब हो जाएगी उसको भी जानता है। उसे अपना पूरा मकसद पता था कि वो सलीब पर दिया जाएगा, उसे कोड़ों से मारा जाएगा, उसे पता था बड़ा जुल्म उस पर होगा। इसको भी वो जानता था कि मैं आज इन बच्चों के लिए क्या करूंगा। वो आपको एक एक को नाम बनाम जानता है, आपकी एक एक की सूरत उसकी हथेलियों पर खोदी हुई है। वो आपको दिल से चाहता है, वो चाहता है, मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जहां मैं हूंगा वहां तू होगा, मैं तुझे कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कितने लोग उसे दिल से पुकारते हैं? अपने हाथ तो दिखाएं। कितने लोग उसे दिल से पुकारते हैं, उसे दिल से चाहते हैं? हालेलुया। आप खुदा के प्यारे बेटे बेटी हैं, और उसने
उन रोटियों पर बरकत दी, और कलाम में लिखा हुआ है कि वो खा पी के 5,000 आदमी सैर हो गए और 12 टुकड़े बचे। खुदा हमारी एक एक जरूरत को जानता है, वो हम पर रहम करता, वो हम पर तरस खाता, वो हम पर फजल करता, वो हमारे मांगने से पहले। बबूर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन खुदा के तालब कभी नहीं भूखे रह सकते। कलाम में लिखा है रोजी पांदे भूखे रहंदे आस जिन्होंने है रब दी। कितनों को खुदा की आस है, क्योंकि तू ही मेरी आस है, तू ही मेरी उम्मीद है। एक दूसरे कहे खुदा यीशु तेरी आस है, खुदा यीशु तेरी उम्मीद है, खुदा यीशु तेरी आस है, खुदा यीशु तेरी उम्मीद है। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर उसके बाद फिर मौका आया, फिर खुदा ने उनसे कहा 4,000 को रजाया, और उस वक्त भी खुदा ने कहा मुझे इन पर बड़ा तरस आता है। खुदा सदा अपने बेटे बेटियों पर तरस करता है। आपका बच्चा स्कूल से पढ़ के आएगा, होंठ सूखे होंगे, माँ दौड़ के जाएगी, हाय मेरा बेटा भूखा है, डब्बे में डाल के किस तरह माँ बाप भगती है बच्चे के लिए, जल्दी जल्दी खा रहा। तो वो जरा आसमानी पापा थोड़े किना को तरसा में लर्जा होता है। जोरदार आसमानी पापा के लिए तालियां बजाओ कि मेरा पापा सदा जिंदा, मेरा पापा हमेशा जिंदा। वो मेरे मांगने से पहले हर चीज करता है, वो हमारी गरीबी पर नजर करता है, वो हमें सरफराज करता है, वो हमें बुलंद करता है, वो हमारी कूद करता है, वो हमारी मदाद है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा ऊंचा किला, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है, वो हमारा मनजी, वो हमारा यीशु नासरी है। हम उसका शुक्र करते हैं, हम उसके नाम को धन धन करते हैं। और यीशु नासरी हर कोई शख्स पर वो तरस खाता, हर कोई शख्स पर वो रहम करता, हर शख्स पर कर्म करता। जो भी जब वो इस दुनिया में थे, चल रहे थे, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बुजुर्ग, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको वो नहीं कर देता था। उस जमाने में बड़े लोगों में बुजुर्गें थी, वो एक ही बात बुजुर्ग अच्छा उठती थी, खुदा के बेटे चुप, खबरदार, कभी नहीं बोलना। लश्कर यीशु ने भगाए, गूंगी और बहरी रूह वाले के भगा दिया। और हमेशा वो औरत, कनानी औरत जिसकी बेटी बदरू में गिरफ्तार थी, यीशु ने जुबान से, शायद वो उसकी बेटी 300 मील दूर थी, और उसी वक्त खुदा यीशु के एक एक लफ्ज में कुदरत है, एक एक लफ्ज में ताकत है, एक एक लफ्ज में अनॉइंटिंग है। जब उसका लफ्ज यस हो जाता है, आसमान से आपके बीच में शिफा आ जाती है। हर बीमारी का तोड़ यीशु है, हर मुश्किल का तोड़ यीशु है, हर मुसीबत को तोड़ने का यीशु है। हर यीशु राशि आपकी कुव्वत है, आपका भरोसा, आपका कुव्वत खुदा, आपकी ईमान है, आपकी ताकत है, आपकी सिपर है, आपकी ढाल है, आपकी जान है, आपकी ईमान है, आपकी मोहरी है। जब आप कामल तौर पर ईमान से उसके पास आएंगे तो यीशु राशि को अपने साथ पाएंगे, यीशु राशि को अपने बीच में पाएंगे, यीशु राशि को आपके साथ होगा। हम उसके नाम को धन करें, हम उसे मुबारक करें। वो जलाली है, वो कदूस है, वो अजीम है, वो महान है, वो खुद तोड़ा खुदा। उसे आज पहन लो, आज उसे जान लो, वो हम सबका खुदा, और हम उसे मुबारक कहते हैं।